See here, when we are talking about the chemical analysis, the here one is semi-microanalysis. By name it is clear semi. When we are semi-micro, when we are doing some analysis, we are taking a very few grams of sample for chemical analysis. So that is called semi-micro analysis. See here, when amount of substance of solid or liquid sample taken for analysis is a very few grams. The analysis is called semi-analysis. See here, we cannot take a large number, very small. Suppose I told you, suppose you want to check the different constraint of suppose milk, तो we will take a small gram of milk या when we are taking blood, ठीक है, a small amount, a small gram of blood we are taking and we are doing some analysis. So this is semi micro analysis. Actually in this semi micro analysis what operators we are using test tubes, beakers, burner, blowpipe, dish, watch glass, crucible, spark plate, wire gauge. These are the operators we are using. Okay. In semi micro analysis, generally these operators test tube, beaker, burner, tube, this we are using. It is also two types. One is what qualitative, another is quantitative. So see here in qualitative analysis there are two methods. One is classical method and दूसरा is second is chemical method. In classical method what we are doing for qualitative analysis, in qualitative analysis we are doing separation and identification. So for separation generally what we are using precipitation, extraction and distillation. So see here in classical method there is no need for a chemical reaction, only we are using physical methods, precipitation, extraction, distillation, and for identification it is based upon color, order, what are the taste of this sample, what is the melting point, boiling point, and how they are reactivity order is there. By the help of these properties, generally we are using physical properties. ठीक है in classical method कि by color, what color there may be of different constraints, ठीक है, and what are the order coming, ठीक है, टेस्टिस हमारे कैसे हैं बेटा, प्लस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और रिएक्टिविटी कैसी होती है. तो ये भाई नॉलेज ऑफ दिस वी आर यूजिंग classical method, ठीक है. And for quantitative analysis it is based upon two things, volume and weight. So volumetric analysis and gravimetric analysis. In volumetric analysis burette pipette we are using for measurement of volume, and we are using physical balance and this for the weight. So by this method, classical method, we can identify or separate. We are taking a small gram of sample, ठीक है. So this method is called, in which what we have seen, we have used precipitation, extraction, distillation, depends upon color, order, taste, melting point, boiling point. Also we are using for quantitative volume and weight. So this is called classical method. In another method we will use chemical. See in chemical analysis there are especially two stages, ठीक है. In two stages we are testing or we are doing quantitative or qualitative analysis of a given sample. So see one is what it has two stages. One is dry method. In dry method it is usually used as preliminary test in the qualitative analysis. ड्राई टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, कि हम एलिमेंट्स को इसमें पहचानते हैं,
जनरली एक्चुअल में ड्राई एनालिसिस में क्या होता है कि वी आर यूजिंग फ्लेम टेस्ट, स्पार्क टेस्ट, हम क्या है कलर चेंजेस क्या हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अगर हीटिंग इफेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कैसा कलर चेंज हो रहा है, तो उससे हम क्या करते हैं एलिमेंट की पहचान करते हैं। तो ड्राई टेस्ट एक्चुअली देखा जाए तो एनालाइजेशन बेस्ड अपॉन चेंज इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर, ठीक है। जनरली हमारा इनिशियल इसमें क्या फ्लेम टेस्ट, स्पॉट टेस्ट, तो ये हमारा क्या है बेटा ड्राई टेस्ट। तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट हम यूज़ करते हैं केमिकल एनालिसिस में, क्या करने के लिए, क्वालिटेटिव है पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट है या कौन सा आपका कंपाउंड प्रेजेंट है। तो एक आपका क्या होता है बेटा ड्राई टेस्ट। अच्छा, दूसरा सेकेंड वन इज वेट मेथड, ड्राई मेथड, वेट मेथड। वेट मेथड में गिवन सैंपल इज अंडर टेस्ट इज फर्स्ट डिजॉल्व, ठीक है। पहले उसको हम क्या करते हैं डिजॉल्व करते हैं। ऐसे डिजॉल्विंग कभी वाटर में भी हो सकता है, कभी कैरोसिन में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उससे पहले क्या करते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें भी हैं सोल्यूट्स में हम डिजॉल्व करते हैं एंड देन एनालाइज। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं टू डिटरमाइन इट्स कंपोजिशन। तो उसमें फिर हम उसको उसके कंपोजिशंस को फाइंड आउट करते हैं, क्या परसेंटेज है, कौन सा मटेरियल कितना मिला हुआ है। तो एक्चुअली इन वेट टेस्ट जनरली what we are using titrations, extractions, thin layer chromatography, TLC, ठीक है। इनका हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए बेटा वेट मेथड में। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक क्लासिकल मेथड, दूसरा कौन सा है आपका केमिकल, एक क्लासिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस के दो पार्ट्स हैं, जनरली 2 स्टेजेस हैं, एक ड्राई है, दूसरा कौन सा है आपका वेट मेथड। ड्राई मेथड में हम कलर चेंज और बेस्ड अपॉन क्या होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर, वहाँ पर आपका क्या होता है जनरली फ्लेम टेस्ट, स्पॉट टेस्ट, इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से मटेरियल। इसमें भी आप देखोगे बेटा ऑर्गेनिक का अलग होगा, इनऑर्गेनिक के अलग होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक को हम कैसे वहाँ पर क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट आर द कलर चेंजेस फॉर इनऑर्गेनिक, सल्फर, ऑक्सीजन, उनमें को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आता है आपका किसमें ड्राई टेस्ट में। और वेट टेस्ट में क्या परसेंटेज कंपोजिशन है उसके लिए हमें टाइट्रेशन, एक्सट्रेशन, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, इन सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। पहले हम गिवन जो भी आपका सैंपल है उसको हम क्या करते हैं बेटा डिज़ोल्व करते हैं जहाँ पर वो डिज़ोल्व हो सकता है, और उसके बाद एनालाइज करके हम क्या करते हैं बेटा डिटरमाइन करते हैं उसके कंपोजिशंस को। See, analysis of organic compounds. So in chemical analysis also we will discuss about the analysis of organic compound. So actually in analysis of organic compound what are happening? It consists the detection of presence of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, halogen. ठीक है, these elements we are in organic compounds. आप लोग बाद में पढ़ेंगे भी, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एमीन्स, ठीक है, हैं बहुत सारे आपके क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी प्रेजेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं वी आर यूजिंग सम स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एलिमेंट्स के लिए हमें स्पेसिफिक टेस्ट होता है, फंक्शन ग्रुप्स को फाइंड आउट करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है तो देयर आर सम स्पेसिफिक टेस्ट कि हाउ वी आर आइडेंटिफाई देयर इज एल्डिहाइड, ठीक है। अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन के लिए, एमीन्स के लिए, ठीक है, हैलोजन अगर हमें फाउंड आउट करना है तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। बाद में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स का, कार्बन का क्या परसेंटेज है, हाइड्रोजन का क्या है। जैसे अगर हम बात करें मीथेन में, तो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज डिफरेंट होगी। व्हेन वी टॉक अबाउट द एथीन, ठीक है, एसिटिलीन, सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो परसेंटेज कंपोजिशन हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फाइंड आउट करते हैं। तो दीज आर कमिंग अंडर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेम वे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इट कंसिस्ट द डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, स्पेशली हियर कैटायन, एनायन, ठीक है, एसिडिक, बेसिक, क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, कैटायन, एनायन प्रेजेंट्स हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसको हम किस में एनालाइज करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में।
क्वालिटेटिव एनालिसिस स्पेशली बेस्ड होता है मास और वॉल्यूम पर, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एंड वॉल्यूमेट्रिक आप कह सकते हैं एनालिसिस पर डिपेंड है। एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर हम किसी चीज़ को क्या करें बेटा, हीटिंग इफेक्ट दे तो डिकम्पोज होता है तो क्या परसेंटेज होगी एक एलिमेंट के दूसरे की कितनी होगी, प्रेजेंस ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। सारी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस, उनका रिएक्शंस कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उनकी वेलोसिटीज़ क्या होती है, काइनेटिक हम उसका वेलोसिटी वगैरह, डिफरेंट कंपोजिशंस क्या पर नोन हमने सबस्टेंस लिया तो अननोन कितना रिएक्ट किया, तो बाय दैट मेथड एंड कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, और कंप्लीट होने की रिएक्शंस के बाद कितना अमाउंट बचा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज़ करते हैं, कभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके वी आर फाइंडिंग डिफरेंट कंपोजिशंस ऑफ कैटायंस, एनायंस एंड एलिमेंट्स इन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर दो हैं आपके पास, एक बार एक है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा क्या है बेटा, एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड।